پہنچوں گا. یہ مومنین بندے ہیں, یہ رب کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گے؟ اے قرآن کسی کا پتہ بتا دے جو رب کی بارگاہ میں پہنچا دے. اے قرآن ایسے انسان کا پتہ بتا دے جو نور بھی ہو انسان بھی ہو. اے قرآن ایسے انسان کی ذات بتا دے جو نور بھی ہو اور انسان بھی ہو, جو ہم گناہگاروں سے ملا ہو اور ہم سے بھی ملا ہو. میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے آ نبی کی بارگاہ میں آ جا, آ رسول کی بارگاہ میں آ جا. وہ رسول پاک نور بھی ہے, وہ انسان بھی ہے. میں نے کہا انہیں کہا کیا جاتا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے وہ رسول وہ ہے جنہیں یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے. یہ رسول وہ ہے جنہیں یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے. یہ رسول وہ ہے جنہیں یا ایھا النبی کہا گیا. یہ رسول وہ ہے جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا. یہ رسول وہ ہے جنہیں شفیع المذنبین کہا گیا. یہ رسول وہ ہے جنہیں رحمت الشکین کہا گیا. یہ رسول وہ ہے جنہیں انس الربیع کہا گیا. یہ رسول وہ ہے جنہیں سید الثقلین کہا گیا. یہ رسول وہ ہے جنہیں تاجدار حرم کہا گیا. ہاں ہاں یہی رسول تو ہے جنہیں نبی الزما کہا گیا. یہی نبی تو وہ ہے جنہیں خاتم النبیین کہا گیا. نبی کی بارگاہ میں آ جا, رسول کی بارگاہ میں آ جا, جن کو قرآن خاتم النبیین کہتا ہے. کبھی محمد رسول اللہ یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باقر خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب میں رسول کی بارگاہ میں پہنچا, میں نے رسول کی ذات کو دیکھا تو رسول دونوں طرف نظر آتے ہیں. رسول جب ہم گناہگاروں سے ملتے ہیں تو ہم رسول کو انسانی شکل میں دیکھتے ہیں, اور جب رسول اپنے خدا سے ملتے ہیں تو ہم انہیں نور خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ رسول نور نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, سرکار کا نور ہے جو ہم گناہگاروں سے ملتے ہیں. رب کی بارگاہ میں بھی وہ مقبول ہے. سرکار ہم غلاموں کو رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے مسلمانوں, اب میں ایک دوسرا جملہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. رب کی بارگاہ میں سرکار نور ہے اور سرکار رب کی نعمت ہے. دوسرا پہلا جملہ سرکار نور, اور دوسرا جملہ سنیے سرکار نعمت. اس کے بعد میں سرکار کی آمد شروع کرتا ہوں. پہلا دوسرا جملہ سنیے, سرکار اللہ کی نعمت ہے, نعمت اللہ بھی ہے. قرآن فرماتا ہے رب کی نعمت کا تذکرہ, رب کی نعمت کا ذکر کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو. رب کی نعمت سرکار ہے. اللہ اللہ. آئیے میں پوچھتا ہوا چلوں, انسان آپ کو بتاتا ہوا چلو, اے مراد آباد کی سرزمین کے لوگوں, اے ادے پور کی سرزمین کے رہنے والے لوگوں, آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے رسول کو نور کہا, نعمت کہا ہے کہ میرا رسول تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے دیکھا, میں نے دنیا کا جائزہ لیا, میں نے حالات کا جائزہ لیا, اور میں نے جو قرآن کی تفسیر کو پڑھا, حدیث مصطفیٰ کو دیکھا, میں نے اقوال مفسرین کو دیکھا, اقوال محدثین کو دیکھا, اقوال فقہ کو دیکھا, تو پتہ یہ چلا یہ آسمان ہمارے لیے نعمت ہے, یہ بارش ہمارے لیے نعمت ہے, یہ ستارے ہمارے لیے نعمت ہے, یہ سورج ہمارے لیے نعمت ہے, یہ چاند ہمارے لیے نعمت ہے, یہ جنت ہمارے لیے نعمت ہے, یہ حور و غلمہ ہمارے لیے نعمت ہے, یہ آب کوثر ہمارے لیے نعمت ہے, یہ میثاب رحمت ہمارے لیے نعمت ہے, خانہ کعبہ ہمارے لیے نعمت ہے, سنگ عظمت ہمارے لیے نعمت ہے, اور دیگر چیزیں یہ ہمارے لیے نعمت ہے. مکہ کی سرزمین ہمارے لیے نعمت, مدینہ کی سرزمین ہمارے لیے نعمت ہے, حضرت آدم ہمارے لیے نعمت ہے, حضرت نوح ہمارے لیے نعمت ہے, تمام انبیاء ہمارے لیے نعمت ہے. میں دیکھ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہمارے لیے نعمت, عمر فاروق اعظم ہمارے لیے نعمت, عثمان غنی ہمارے لیے نعمت, مولا علی ہمارے لیے نعمت, حضرت حسنین کریمین ہمارے لیے نعمت, امام اعظم ہمارے لیے نعمت, غوث اعظم ہمارے لیے نعمت, خواجہ ہند خواجہ غریب نواز ہمارے لیے نعمت ہے, سرکار اعلیٰ حضرت ہمارے لیے نعمت ہے, قاضی شریعہ ہمارے لیے نعمت ہے, علماء ہمارے لیے نعمت, محدثین
हमारे लिए नेमत, हमारे माँ बाप हमारे लिए नेमत है, कुरान हमारे लिए नेमत है, नमाज हमारे लिए नेमत है, रोज़ा हमारे लिए नेमत है, ज़कात हमारे लिए नेमत है, तिलावत कुरान हमारे लिए नेमत है, ये जलसा हमारे लिए नेमत है, इन उलमा का आना हमारे लिए नेमत है, आपका जिक्र सुनना ये नेमत है, दुरूद पाक हमारे लिए नेमत है, ये सब नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें। हमारे माँ बाप हमारे लिए नेमत, हमारी आँख हमारे लिए नेमत है, हमारा जिस्म हमारे लिए नेमत है। मैंने आलम तसव्वुरात के अंदर रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए परवरदिगार तूने अनगिनत नेमतें अता फरमाई है, ए परवरदिगार तूने बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। मौला हम तेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, ए परवरदिगार ये बता हम तेरी कौन कौन सी नेमत का तज़किरा करें। तो रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे मेरी सबसे बड़ी नेमत का तू तज़किरा कर दे तो सारी नेमतों का तज़किरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। एक नेमत का तज़किरा कर दे जो मेरी सबसे बड़ी नेमत है, उस नेमत का तज़किरा कर दे तो सारी नेमतों का तज़किरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने आलम तसव्वुरात के अंदर अपने रब से पूछा, ए मौला तेरी नेमतें बड़ी बड़ी नेमतें हैं, मौला वो कौन सी नेमत है जो इसका तज़किरा करने से सारी नेमतों का जिक्र हो जाएगा। तो रब ने इरशाद फरमाया, वो नेमत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सरकार का तज़किरा कर दे, तेरे सरकार का तज़किरा करने से तेरी तमाम नेमतों का तज़किरा हो जाएगा, तमाम नेमतों का तू ज़ाकिर हो जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, परवरदिगार दुनिया का उसूल है जब कोई किसी की तारीफ करता है तो उसे इनाम और इकराम से नवाजता है। ए मौला दुनिया का ये दस्तूर है कि जब कोई किसी का जिक्र करता है उसे ताजो तहसील से नवाजा जाता है। ए परवरदिगार, ए मेरे मालिक व मौला तू मुझे क्या अता फरमाएगा? मैं तेरे महबूब का तज़किरा करूंगा, मैं तेरे रसूल का नाम लूंगा, मैं तेरे रसूल पर दुरूद पढ़ूंगा, मैं नमाजों में रसूल पर दुरूद पढ़ूंगा, मिलादों में रसूल पर दुरूद पढ़ूंगा, जलसों में रसूल पर दुरूद पढ़ूंगा। ए परवरदिगार तू अता क्या फरमाएगा? रब की तरफ से जवाब आता है, प्यारे सुन ले, जो मेरे नेमत का तज़किरा करेगा, जो मेरे रसूल का जिक्र करेगा, मैं उसे दुनिया में इज्जत दूंगा, आखिरत में जन्नत अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नेमत सरकार हमारे लिए खुद हदीस पाक में आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक बाबू सिला की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत कि सरकार की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह ये कुफार आपके कत्ल के मंसूबे बनाते हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप इनके हक में बदुआ तो नहीं फरमा देते। सरकार ने फरमाया, अना बुइस्तु नेमतन वला अदाबत। ए अबू हुरैरा सुनो, अल्लाह ने मुझे नेमत बनाकर पैदा फरमाया है, अदाब बनाकर नहीं भेजा है। मैं रहमत नेमत हूँ। अल्लाह अल्लाह। आइए मुसलमानों, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए नेमत है। सरकार हमारे लिए नेमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, रहमत भी बनकर तशरीफ लाए। आइए सरकार की आमद का तज़किरा मौलाना गुलाम साहब से आपने शुरू में सुना था कुछ तज़किरा, उन्होंने सरकार की आमद का किया, लेकिन आइए मैं भी आपसे थोड़ा सा तज़किरा करता हुआ चलो। हज़रत सैयदना शेख अबू नईम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब दलाइल नबूवत में आमद मुस्तफा की बशारत के बयान में फरमाते हैं कि आपके दादा जान रसूल पाक के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा में सो रहे थे। ये खाने काबा के मुतवल्ली भी थे, रईस मक्का भी थे, सरदार मक्का भी थे, गोया मक्का के हाकिम थे। एक दिन मक्का शरीफ में लेटे के हैं, खाने काबा में आराम कर रहे हैं, नींद की हालत में है। क्या देखते हैं कि मेरे आंगन से एक पेड़ निकल रहा है, एक शजर निकल रहा है, एक दरख्त निकल रहा है, और देखते ही देखते वो पेड़ आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच चुका है, और उसकी शाखें उसकी टहनियां मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक हो गई है। उससे पहले पूरी दुनिया में धूप थी, अब लोग आते हैं चारों जानिब से और उस पेड़ के साए में आराम करने लगते हैं, उस पेड़ से चिपट जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने आगे ये बात देखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब तक धूप में जल रहे थे, वो औजार लेकर आते हैं और पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेड़ को तो नहीं काट सकते हैं, अलबत्ता उसकी बांस टहनियों को जरूर काट देते हैं। फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा जान कि ये सोच
सोच कर मेरी आंख हो गई, आखिर वो लोग कौन है, वो पेड़ क्या है, और जो धूप थी वो क्या चीज है, और जो पेड़ से लिपट गए वो लोग कौन थे, जो पेड़ को काटना चाहते हैं वो लोग कौन थे। फरमाते हैं मक्का के अंदर एक औरत थी जो ख्वाबों की ताबीर बताती थी, जो काहिना औरत थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं उस औरत के पास गया और उस औरत से अपना ख्वाब बयान किया, लेकिन सुनो, फरमाते हैं मक्का का ये दस्तूर था, मक्का में ये चाहत मौजूद थी कि कोई अपना ख्वाब पूछने के लिए जाता तो उस औरत के हाथों को चूमता था। लेकिन फरमाते हैं मैं चूंकि शरीफ था, मैं रईस मक्का था, मैं रसूलुल्लाह का दादा जान, इसलिए मैंने उस औरत का हाथ नहीं चूमा, क्योंकि ये शराफत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। ए मुसलमानों, मैं ये पैगाम देना चाहूंगा उन पीरों को जो पीर औरतों का हाथ में हाथ लेकर मुरीद करते हैं, वो रसूलुल्लाह के दादा जान से समझ सीखे। रसूलुल्लाह के दादा जान ने ये बता दिया ये शरीफों का काम नहीं कि वो गाय औरत का हाथ अपने हाथ में ले। ये रसूल के दादा जान ने बताया ये शरीफों का काम है, ये बदकारों का काम होता है कि वो गैर औरतों का हाथ अपने हाथ में लेते हैं। शरीफ लोगों का काम होता है पर्दे में रख के उनसे बात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल मुख्तसर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने उसके हाथ को चूमा नहीं, मैं गया और मैंने उस औरत से कहा ये औरत मैं तुझसे ख्वाब पूछने के लिए आया हूँ, मैं अपना ख्वाब लेकर आया हूँ, क्या तू मेरे ख्वाब की ताबीर बयान करेगी। आज करती है आका बयान फरमाए आपका ख्वाब क्या है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने ख्वाब ये देखा है कि मेरे मकान से, मेरे आंगन से एक पेड़ निकला, एक दरख्त निकला है जो देखते ही देखते आसमानों पर पहुंच गया है और उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल गई हैं। अब तक पूरी दुनिया में धूप थी लेकिन लोग उस पेड़ की छांव में आने लगे। उस औरत ने जब इतना ख्वाब सुना तो कहने लगी आका ख्वाब मुबारक हो, ख्वाब बहुत अच्छा है, फरमाते बता ख्वाब क्या है। उस औरत ने कहा इसकी ताबीर ये है ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुमने जो पेड़